Welcome students in RP classes. Today we will going to discuss question 4, 5, 6, exercise 6.2 from class 9th NCERT Maths chapter 6. Students, you can watch question 1 to 3 and exercise 6.1 theorems in my playlist. So let's get started. Question 4. In figure, if PQ parallel ST, angle PQR equal 110 and RST इक्वल 130, फाइंड एंगल QRS. इसमें PQ और ST पैरेलल दिए हैं, एंगल PQR 110 और एंगल RST 130 गिवन है और आपको एंगल QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं. ड्रॉ EF पैरेलल PQ. EF और पैरेलल EF के पैरेलल PQ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. सो गिवन PQ पैरेलल ST, एंगल PQR 110, एंगल RST 130. टू फाइंड एंगल QRS, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF पैरेलल PQ पासिंग थ्रू R. R पॉइंट से EF पास होगा. सॉल्यूशन PQ पैरेलल ST क्वेश्चन में गिवन है और EF पैरेलल PQ पैरेलल EF कंस्ट्रक्शन किया है हमने. कंस्ट्रक्शन PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल EF, सो दैट तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी. PQ पैरेलल ST पैरेलल EF. If two lines parallel to a same given line, they are parallel to each other. So PQ parallel ST parallel EF. Now students, इन एंगल्स को कुछ नेम दे देते हैं. 1, 2, 3. स्टूडेंट्स, PQ parallel EF, so we can say एंगल Q प्लस एंगल 1, ये दोनों एंगल्स इज इक्वल टू 180 होगा. इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स. ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180. सो वैल्यू ऑफ एंगल Q 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. सो एंगल 1 इज 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. सिमिलरली ST पैरेलल EF, so angle S plus 3 is also 180 co-interior angles. So we write here angle S plus angle 3 equal to 180 co-interior. Co-interior angles. एंगल S की वैल्यू पुट करेंगे 130. सो 130 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 3 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो एंगल 1 70 डिग्री, एंगल 3 50 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 आर फॉर्मिंग 180. सो दीज आर स्ट्रेट लाइन एंगल्स. So we write here angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 line angles. इनको हम लाइन एंगल्स लिख देंगे. वैल्यू पुट एंगल 1 70, एंगल 2 फाइंड करना है. एंगल 3 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120
60 डिग्री आ गया। स्टूडेंट्स, एंगल 2 इज QRS, so we write here angle, so that angle QRS is 60 degree. I repeat it again, student, this is important question from this exercise, so watch carefully. In this question, PQ parallel ST given, we have construct EF parallel PQ passing through R. So angle Q and angle 1 are co-interior angles. So angle Q plus 1 is equal to 180 degree. Put the value angle Q 110. So angle 1 is 70 degree. Similarly, ST parallel RS, angle S plus 3 is also 180 degree co-interior angles. Put the value angle S 130 plus 3, angle 3 is equal to 180, so angle 3 is 50 degree. Now 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 line angles. So 70 plus angle 2 plus 50 180, 120 plus 2 is equal to 180. So angle 2 is 60 degree. Angle 2 is angle QRS. Angle QRS. So angle QRS is 60 degree. Now we start next question. Question 5. The question is, in figure, if AB parallel CD, APQ is equal to 50 degree, PRD is equal to 127, find X and Y. AB parallel CD, APQ 50 degree, PRD is 127, find angle X and Y. So given AB parallel CD, angle APQ 50 degree, PRD 127, to find X and Y. Solution: AB parallel CD given. So angle APQ is equal to angle PQR. Alternate इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अब पोजीशन में लेफ्ट में, ये बिलो पोजीशन राइट में है. सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो वी राइट हेयर एंगल APQ इक्वल एंगल PQR. Alternate interior angles. So 50 is equal to X. Now we find angle Y. Look here, APR is equal to PRD are also form in alternate interior angles. AB parallel CD, ये P ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड अब पोजीशन में बन रहा है एंगल 50 प्लस वाई APR, और राइट साइड में बिलो पोजीशन में बन रहा है PRD. सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो वी राइट हेयर एंगल APR is equal to angle PRD. Alternate interior angles. Alternate interior angles. APR 50 plus Y है, so we write here 50 plus Y is equal to PRD 127. So angle Y is equal to 127 minus 50, 77 degree. So answer is 77 degree. So we find angle X is equal to 50 degree and angle Y is equal to 77 degree. I repeat it again. AB parallel CD given. So APQ and PQ are alternate interior angles. Angle APR 50. So angle X is also 50 degree. Similarly, APR and PRD are also alternate interior angles. जेट फॉर्मेशन हो रही है. So APR is equal to PRD. 50 plus Y is equal to 127. 50 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट किया. So angle Y is equal to 77 degree. So in this way we can find angle X 50 degree, angle Y 77 degree. Now we start question 6. Question 6 is, in figure PQ and RS are two mirrors
placed parallel to each other, an incident ray AB strike mirror PQ and reflect, move along path BC and strike mirror RS, again reflect back CD. Prove that AB parallel CD. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये PQ और RS दो मिरर दिए हुए हैं, ये आपस में पैरेलल हैं और कोई AB रे मिरर ए PQ पर स्ट्राइक करती है B पॉइंट पर, रिफ्लेक्ट होती है BC पाथ पर, अगेन स्ट्राइक करती है RS मिरर पर C पॉइंट पर एंड रिफ्लेक्ट होती है CD पाथ पर। तो आपको प्रूव करना है ये AB पैरेलल CD होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं, BM परपेंडिकुलर PQ, CN परपेंडिकुलर RS। सो गिवन PQ पैरेलल RS, टू प्रूव AB पैरेलल CD, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ, CN परपेंडिकुलर RS। नाउ प्रूफ PQ पैरेलल RS गिवन BM परपेंडिकुलर PQ, CN परपेंडिकुलर RS। कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है स्टूडेंट। व्हेन टू लाइन परपेंडिकुलर टू अ सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ये कोई लाइन है, इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। सिमिलरली इन दिस फिगर BM ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, तब ये आपस में परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाती हैं। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल हो जाएंगी। सो इसमें PQ और RS पैरेलल हैं, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो BM पैरेलल CN। Now BM parallel CN, so angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angles। ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अब पोजीशन में, ये बिलो पोजीशन में, लेफ्ट और राइट में अलग अलग बन रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। या आप कह सकते हैं जेड फॉर्मेशन हो रही है तब भी ऑल्टरनेट एंगल्स होती हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होती हैं जब जेड फॉर्मेशन होती है, ये दोनों एंगल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So in this way angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Now angle 2 is equal to 3, 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, 3 is equal to 4. So all angles are equal. So we write here angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. Now we add angle 1 and 2 and 3 and 4. So we write here angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 प्लस एंगल 4, सारे आपस में इक्वल है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो जाएगा। नाउ 1 प्लस 2 एंगल ABC है, सो वी राइट हेयर एंगल ABC। 3 प्लस 4 एंगल BCD है, सो वी राइट हेयर एंगल BCD। सो एंगल ABC इक्वल एंगल BCD, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये BC ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। सो वी राइट हेयर सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर
angles so that AB parallel to CD. I repeat it again. PQ parallel RS, AB parallel CD. Construct BM perpendicular PQ, CN perpendicular RS. Prove PQ parallel RS given. BM perpendicular PQ, CN perpendicular RS, so that BM parallel CN. BM parallel CN, so that angle 2 is equal to angle 3. Angle 1 is equal to 2. Law of reflection, angle 3 is equal to 4. Also law of reflection. So 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, 2 is equal to 3. So angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4. एंगल 1 और 2 को ऐड किया, 3 और 4 को ऐड किया, सो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4. और इसको हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल एंगल BCD. सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं, सो वी कैन से AB पैरेलल CD. होप यू ऑल अंडरस्टूड. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.